Bismillahirrahmanirrahim. In today's lecture, we will discuss about types of muscles. Usually, there are three types of the muscles. One is the skeletal muscle, second is the smooth muscle, and third one is the cardiac muscle. These are the three types of the muscles in the human muscular system. And in today's lecture, our major concern will be about skeletal muscle, its structure, and the properties of the skeletal muscle. And I will let you know जो स्मूथ मसल एंड द कार्डियक मसल हैं, ये दो डिफरेंट लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह. तो इन दिस लेक्चर वी विल फोकस ऑन द skeletal muscle, structure and the properties of the skeletal muscle. So let's move on. फर्स्टली हम देखेंगे ये जो skeletal muscle है ये कहाँ पे लोकेट करता है. Where it is located in the human muscular system. इसकी लोकेशन कहाँ पे है. skeletal muscle जो है by its name itself, इसके नाम से ही पता चलता है that the skeletal muscle it is attached to the skeleton. जो हमारा हड्डियों का ढांचा है जो skeleton है, skeleton के साथ ये अटैच है. मीन्स कि it is these skeletal muscles are connected to the bones. ये bones के साथ अटैच है. इनका अटैचमेंट जो है इन muscles का वो bones के साथ है. They are attached to the end of bones. bones के साथ भी कहाँ पे? End of the bones. जो bones है, bones के end पे इसका अटैचमेंट है skeletal muscle का. And skeletal muscle they are stretching across the joints. Across the joint से stretch है skeletal muscle. अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है what attaches muscles to the bones. muscles and the bones के बीच में जो अटैचमेंट है जो मसल्स को बोन्स के साथ विंड करता है वो क्या है. दैट वी कॉल द टेंडन. उस चीज को हम टेंडन कहते हैं. दैट टेंडन अटैचेस मसल्स टू द बोन्स. यही इसी टेंडन की वजह से स्केलेटल मसल जो है ये स्केलेटन के साथ अटैच है, ये एंड ऑफ द बोन्स के साथ अटैच है. एंड दैट इज व्हाई इट इज स्ट्रेचिंग all across the joints. It is because of the tendon. And what is tendon? Tendon is a cord-like structure. This tendon is a cord-like structure. This is the connective tissue. Bands of the inelastic connective tissue. This inelastic bands of connective tissue we call it is the tendon. I mean to say this is the tendon which binds skeletal muscle, which attaches skeletal muscle to the skeleton, which connects skeletal muscles to the bones, which attaches skeletal muscle to the ends of the bones, which that is why it is stretching all across the joints. It is only because of this tendon. This is fibrous collusion. ये जो टेंडन है इसी की बिहाव पे बोन्स और स्केलेटन के बीच में अटैचमेंट हो जाता है. जो स्केलेटल मसल हैं, स्केलेटल मसल दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस. स्केलेटल मसल जो हैं दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस. इट इज़ फेमिलियर टू ऑल ऑफ अस कि जो हमारा स्केलेटल मसल है इनका डिफरेंट साइज है, इनका डिफरेंट शेप है. So they are of different shape and the different sizes. Say for example, gluteus maximus muscle जो है, gluteus maximus, where it is located? This gluteus maximus that occurs in the buttocks. जो बटक पोर्शन है हमारा,
तो वहीं पे ये ग्लूटिस मैक्सिमस मसल है। दिस इज द बिगेस्ट, दिस इज द लार्जेस्ट मसल इन द ह्यूमन मस्कुलर सिस्टम। तो इसकी अलग शेप है, ये वाली, ये जो बिगेस्ट मसल है ग्लूटिस मैक्सिमस, दैट ऑकर्स इन द buttocks. In the same way, there is one more muscle. I am trying to understand you that the skeletal muscles are of different shape and the different sizes. So in this way, I have chosen some examples like the gluteus maximus. In the same way, there is one more, that is the sartorius muscle. Sartorius muscle, it is in the interior of the thigh. Thigh के interior side से जो muscle है ना, that we call the sartorius muscle, and this is the longest muscle. This muscle is the longest muscle which is located interior of the thigh. जो locate कहाँ पे, interior of the thigh पे locate है, थाई के अंदरूनी साइड से ये लोकेट है, ये sartorius मसल। तो इसकी अलग शेप है, इसका क्या, ये इट इज कंसिडर्ड द लॉन्गेस्ट मसल इन द ह्यूमन मस्कुलर सिस्टम। अगर पूछा जाएगा कि ह्यूमन मस्कुलर सिस्टम में लॉन्गेस्ट मसल कौन से हैं, तो दैट इज द sartorius मसल। एंड दिस मसल इट रन्स ओवर टू जॉइंट्स, it stretches over two joints, it runs over two joints, hip and knee. Hip और knee से जो interior of the thigh, hip से लेकर knee तक it runs over two joints, and its length is the 600 mm. 600 mm इसकी length है, though that is why it is called the longest muscle in the human muscular system. And one more interesting thing is that this sartorius muscle is also called the Taylor's muscle. टेलर मसल भी इसको कहा जाता है। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दिस थिंग दैट दिस मसल इज आल्सो कॉल्ड द हनीमून मसल। दिस मसल इज आल्सो कॉल्ड द हनीमून मसल। You must be surprised to know this thing, that this muscle is known as the honeymoon muscle as well as the third muscle, that is the master, all the muscles of the jaw के तमाम मसल, इस जबड़े के जो मसल्स हैं, these we call the master, इनको master कहते हैं। तो this muscle it is considered the strongest muscle। इस मसल का अलग शेप है, जो मैंने ग्लूटिस मैक्सिमस कहा है, दैट इज लोकेटेड इन द बटक्स, जो वो बटक्स पे लोकेट है, तो उसकी अलग शेप है, अलग साइज है। sartorius muscle, that is the longest muscle, 600 mm of its length, having its length, so that is that have different size and the shape. And this the master, it has its own shape and size. This muscle is called considered the strongest muscle in the human muscular system. And in the same way, some other major skeletal muscles are like deltoid, that deltoid muscles जो हैं, that are in our shoulder, जो in the shoulder हैं, and the fifth one, that is the latissimus, that is also in the shoulder. And trapezius muscle, upper back and each of the neck, upper back जो हमारा है, जो ट्रेपेजियस मसल की बात कर रहे हैं, अपर बैक एंड ईच साइड ऑफ द नेक उन्हीं पे लोकेट है। एंड द पेक्टोरल्स में भी दो है, पेक्टोरल्स मेजर एंड पेक्टोरल्स मेजर एंड द पेक्टोरल्स माइनर, दैट आर इन द चेस्ट पे ये मसल्स लोकेट हैं। एंड द हैमस्ट्रिंग इन द लेग में हैमस्ट्रिंग मसल है। एंड द लास्ट not last but least, that is the stapedius muscle in the ear, and this muscle is considered the smallest muscle in the human muscular system. So मेरे कहने का यही मतलब था, समझाने का यही मतलब था, ये इन चीज़ों को हाईलाइट करने का यही मतलब था कि skeletal muscles are of the different size and the different shapes. In keeping this point that skeletal muscles are of the different shapes and the different sizes, I have taken some muscles, that is the largest muscle or the biggest muscle, that we call the gastrocnemius, that has its own size and that is different from the rest of the muscles in the human muscular system. And likewise I have taken the sartorius muscle. That muscle is called the longest muscle because it has 6 mm length. And this muscle is called a Taylor muscle and the honeymoon muscle as well. And in the same way, the strongest muscle in the human muscular system, that is called the mastrus, deltoid, latissimus, trapezius, pectoralis major, pectoralis minor, hamstring in the leg, stapedium, that is the smallest muscle in the human muscular system. So this was the skeletal muscle. So let's move on the structure. अब structure की बात करेंगे, जो skeletal muscle का structure है उसी पे हम बात करेंगे।
तो फॉर दैट आई विल रब दिस फर्स्टली जो स्केलेटल मसल है, स्केलेटल मसल इज ऑल्सो कॉल्ड, स्केलेटल मसल के और दो नाम्स दिए गए हैं, दैट इज इट इज ऑल्सो कॉल्ड वॉलेंट्री मसल। एक तो इसको वॉलेंट्री मसल कहा जाता है, दूसरा इस स्केलेटल मसल को स्ट्रेटेड मसल भी कहा जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेटेड मसल। हियर वी हैव क्वेश्चन दैट वॉलेंट्री मसल इसे क्यों कहा जाता है, वाई स्केलेटल मसल इज ऑल्सो कॉल्ड वॉलेंट्री मसल एंड वाई स्केलेटल मसल इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेटेड मसल। जो स्केलेटल मसल है इसको वॉलेंट्री मसल कहा जाता है, वाई, दे आर वॉलेंट्री टाइप ऑफ मसल्स, ये मसल जो है ना दे आर वॉलेंट्री टाइप। फर्स्ट स्केलेटल मसल जो है दे आर वॉलेंट्री टाइप ऑफ मसल्स, ठीक, मीन्स के जो स्केलेटल मसल्स टाइप ऑफ कंट्रोल कौन सा है, वॉलेंट्री टाइप ऑफ कंट्रोल है इन मसल्स पे, एक पर्सन का वॉलेंट्री टाइप ऑफ कंट्रोल है, दे कैन बी कंट्रोल, इन मसल्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं, दे और इन अवर कॉन्शियस कंट्रोल, ये हमारी कॉन्शियस कंट्रोल में, दियर एक्शंस इन स्केलेटल मसल्स के जो एक्शंस है, दियर एक्शंस और इन और अंडर द कंट्रोल ऑफ सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में ये स्केलेटल मसल्स की एक्शंस सोमैटिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल के अंडर है, देयर एक्शंस और देयर एक्शंस और अंडर द कंट्रोल ऑफ सोमैटिक नर्वस सिस्टम। जो सोमैटिक टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम है, सोमैटिक टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम ही इन स्केलेटल मसल्स की एक्शन को कंट्रोल करता है। तो से फॉर एग्जांपल, इस चीज को मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा। से फॉर एग्जांपल, वी कैन नॉट पिक अप दिस मार्कर, I will let the example of this marker. We cannot we cannot pick up this marker with our hands. With our hands, हम उठा ही नहीं सकते हैं इस मार्कर को अपने हाथों से, unless we want our hands to do so. Unless we want our hands to do so. So that is why we can say that these muscles are called the voluntary muscles, because these muscles are in our conscious control, like these muscles are जो इसो यहाँ पे क्या कहते हैं, बकल कैविटी, माउथ एंट्री जो होता है जहाँ से हम इनटेक करते हैं न्यूट्रेंट्स को, तो ये भी स्केलेटल मसल है। जो एग्जिट्स है हमारे पे, जहाँ पे एक्सक्रीट होता है, वहाँ पे भी वो मसल्स भी, जैसे कि यूरिनरी के वो ब्लैडर्स, वो एग्जिट्स पे भी ये स्केलेटल मसल्स मौजूद हैं। लाइक दिस आई, ये आई जो है, ये इसको हम ब्लिक करते हैं, इस ब्लिक को हम रोक भी सकते हैं, ये हमारी कॉन्शियस कंट्रोल में है। तो ये हमारी इन मसल्स पे, स्केलेटल मसल्स पे हमारा कॉन्शियस टाइप ऑफ कंट्रोल है, हमारा वॉलेंट्री टाइप ऑफ कंट्रोल है। तो दैट इज व्हाई वी कैन से दैट दिस स्केलेटल मसल इज आल्सो कॉल्ड द वॉलेंट्री मसल। सो जो स्केलेटल मसल है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेटेड मसल। इस स्केलेटल मसल को हम स्ट्रेटेड मसल भी कहते हैं। व्हाई इट इज कॉल्ड स्ट्रेटेड मसल? फर्स्ट, जो Striations are present there, वहां पे स्ट्रेशन इज प्रेजेंट है, स्केलेटल मसल्स में स्ट्रेशन इज प्रेजेंट है फर्स्ट, और दे अपीयर टू हैव लाइट एंड डार्क स्ट्रिप्स, लाइट एंड डार्क स्ट्रिप्स वहां दिखने लगते हैं। सेकंड,
they mean skeletal, they appear to have light and dark. They appear to have light and dark strips. लाइट एंड डार्क स्ट्रिप्स ये दिखने लगते हैं व्हेन viewed अंडर द लाइट ऑफ माइक्रोस्कोप. अंडर अ लाइट ऑफ माइक्रोस्कोप. जब हम स्केलेटल मसल को माइक्रोस्कोप के अंडर व्हेन viewed अंडर अ लाइट ऑफ माइक्रोस्कोप द स्केलेटल मसल इट अपीयर्स टू हैव लाइट एंड डार्क. वहां पे सिट्रेशंस दिखने लगते हैं, दारियां जैसे दिखने लगती हैं. से फॉर एग्जांपल ये स्केलेटल मसल है, लाइट एंड डार्क, लाइट dark, light dark, light dark, light dark. I mean to say ये जो skeletal muscle है, it is also called striated muscle. Why it is also called striated muscle? When the skeletal muscle is viewed under a light of microscope, जब हम इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं, what happens there? We see that these muscles appear to have light and dark strips. Light and dark strips. ये वाला light strip है, ये dark strip है. ये light है, ये dark है. ये लाइट है, ये डार्क है. ये स्ट्रिप लाइट है, ये डार्क है. मीन्स की सिट्रेशन प्रेजेंट है वहां पे. ये जो थिक एंड थिन फिलामेंट की वजह से जो अरेंजमेंट है वहां पे प्रोटीन्स का, टू कंट्रैक्टाइल प्रोटीन्स का जो अरेंजमेंट वहां पे, एक्टिन और मायोसिन का अरेंजमेंट जो है, जो एक तो थिन वाला है, दूसरा थिक वाला है, एक्टिन एंड मायोसिन. इन थिन और थिकनेस की वजह से और इनका अरेंजमेंट जो है, इनकी अरेंजमेंट की वजह से इट इज अरेंजमेंट कॉज दीज लाइट एंड डार्क बैंड्स. इनका अरेंजमेंट ऐसा ही है तो दैट बिकम्स द कॉज फॉर दिस सिट्रेशन. इस लाइट और डार्क बैंड की वजह से इनका जो टू कंट्रैक्टाइल प्रोटीन जो है यहाँ पे जिस तरीके से उस प्रोटीन का अरेंजमेंट है, उस प्रोटीन की अरेंजमेंट की वजह से वो सिट्रेटेड दिखने लगते हैं when we viewed through the microscope. Means कि due to the presence of the alternate light and dark bands, alternate light and dark bands की presence की वजह से when viewed through the under a light of microscope, these muscles appear to have light and dark. That is why these muscles are called striated muscles. क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे कि वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री. वॉलेंट्री कंट्रोल है इन स्केलेटल मसल्स पे और दे आर आल्सो कॉल्ड वॉलेंट्री मसल्स एंड एज वेल एज द स्ट्रेटेड मसल. तो स्ट्रक्चर, व्हेन इट कम्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ द स्केलेटल मसल, तो वी कैन कम टू नो दैट स्केलेटल मसल जो है, दीज मसल्स आर मेड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मसल सेल्स. स्केलेटल मसल्स लार्ज नंबर ऑफ मसल सेल्स से बने हुए होते हैं. मसल सेल्स को फाइबर्स भी बोलते हैं कि ये मसल स्केलेटल मसल्स मसल फाइबर्स के बने हुए होते हैं और मसल सेल्स के बने हुए होते हैं. और ये जो मसल फाइबर्स हैं या मसल सेल्स हैं, ये शॉर्ट सेल्स नहीं है. दे आर लॉन्ग fibers, they are long cells, they are having the cylindrical shape, they are spindle, they are having the elongated shape, and one more thing, they have a they are multi-nucleated. These skeletal muscles, these fibers of the skeletal muscles, जिनका skeletal muscle बना हुआ होता है, ये फाइबर जो है, ये मसल सेल्स हैं, ये लॉन्ग हैं, सिलेंड्रिकल शेप है, इनकी एलोंगेटेड शेप है, स्पाइडल है, या ऐसे वैसे मसल सेल्स हैं, ये लार्ज मसल सेल्स हैं. एंड दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड. ये मसल सेल्स हैं, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड मीन्स कि
पर फाइबर ईच मसल फाइबर जो है दैट हैज मैनी न्यूक्लियाई, वन और मोर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है ईच मसल फाइबर में। पर मसल फाइबर, per muscle cell has one or more nuclei, that is why we can say that कि ये मसल सेल्स जो है, मसल फाइबर जो है, they have multinucleated, they are multinucleated, वो multinucleated हैं। और ये जो मसल फाइबर्स हैं जिनका मसल स्केलेटल मसल बना हुआ होता है, दीज मसल सेल्स और द मसल फाइबर्स और द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द मसल। इस मसल टिश्यू, ये स्केलेटल मसल टिश्यू जो है, ये स्केलेटल मसल टिश्यू का स्ट्रक्चरल यूनिट और द फंक्शनल यूनिट कौन सा है? वो मसल सेल है। मसल सेल को फाइबर भी बोलते हैं। एंड ये जो फाइबर्स हैं, ये फाइबर्स भी these muscle cells are also composed of numerous tiny small thin fibrils called myofibrils। means ये जो मसल सेल्स हैं, मसल सेल्स myofibrils के बने हुए होते हैं। these fibers are also composed, they are composed of they are composed of the fibers, they are composed of the myofibrils, ये myofibrils के बने हुए थे। like यहाँ पे इस चीज़ को समझाने की कोशिश करता हूँ। this is the muscle, ये वाला मसल है, ये मसल है, स्केलेटल मसल है। इस स्केलेटल मसल जो है, ये स्केलेटल मसल is made up of the muscle fiber, is made up of the large number of muscle cells, muscle fibers। और ये जो muscle fibers हैं, ये भी these are composite of small thin fine numerous fibrils called the myofibrils। ये मसल फाइबर्स और मसल सेल्स ये myofibrils से बने हुए होते हैं। एंड हियर आई वांट टू ऐड वन मोर पॉइंट, दैट इज इट, कि ये जो मसल सेल्स हैं, इंडिविजुअल मसल फाइबर जो है, दैट इज फॉर्मड फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ द मायोब्लास्ट्स इन ए प्रोसेस ऑफ मायोजेनेसिस। मायोजेनेसिस की प्रोसेस से क्या होता है, ये जो इंडिविजुअल मसल सेल जो है इज फॉर्मड फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मायोब्लास्ट। जो मायोब्लास्ट्स का फ्यूजन होता है, फ्यूजन होता है, तो उस प्रोसेस को जहाँ पे मसल सेल और मसल फाइबर फॉर्म हो जाता है, दैट बाय द प्रोसेस वी कॉल दैट मायोजेनेसिस। उस प्रोसेस को मायोजेनेसिस कहते हैं। तो लेट्स मूव कि क्या कह रहा था मैं, मसल, स्केलेटल मसल जो है ये इज मेड ऑफ लार्ज मसल सेल्स एंड these मसल सेल्स आर आल्सो मेड ऑफ स्मॉल न्यूमरस फाइन फिब्रिल्स कॉल्ड द मायोफिब्रिल्स। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। तो इस चीज़ को पूरी तरह पढ़ने के लिए मैं आपको डायग्राम से इस चीज़ को फैसिलिटेट करता हूँ। तो ये जो है, दिस इज द स्केलेटल मसल, ये जो डायग्राम ऑफ द स्केलेटल मसल, राइट। तो ये डायग्राम जो है यहाँ पे, ये पूरी स्केलेटल मसल है, और ये जो है, ये दीज आर कॉल्ड द स्ट्रेशंस। ये स्ट्रिप्स हैं जो मैंने बताए हैं, डार्क लाइट, ये स्ट्रेशंस हैं। That is why I have early told to you that the striations, जब मैंने striated कहा कि ये क्यों striated कहा जाता है, तो मैंने कहा कि striations are present there। इस entire complete skeletal muscle cell में striations दिखने लगते हैं, धारियाँ जैसे दिखने लगते हैं वहाँ पे। तो ये वाला striated, ये striations है। और this one, ये जो आपको डोल जैसा नजर आ रहा है, this is called the bone, ये bone है। and this one, पहले ही बताया आपको कि ये अटैच, ये मसल है, मसल बोन के साथ अटैच है विद द हेल्प ऑफ कॉर्ड, दैट inelastic connective tissue, that fibrous collusion connective tissue is called the tendon। ये टेंडन है, it is called the tendon, this is called the bone। ये वाली striations है, राइट। उसके बाद ये जो आपको नजर आ रहा है, जो मैं रेड मार्कर से डिजाइन करने की कोशिश करूंगा, ये वाला, ये ट्रांसवर्स, ये कंप्लीट स्केलेटल मसल, इस कंप्लीट स्केलेटल मसल में ये जो आउटर कवरिंग, ये ट्रांसवर्स सेक्शन, ये क्रॉस सेक्शन ऑफ द इंटायर कंप्लीट स्केलेटल मसल है, ये वाला जो है, इट इज कवर्ड, इट इज सराउंडेड विद द कनेक्टिव टिश्यू। एक शीट है, कनेक्टिव टिश्यू का शीट है,
जिससे ये कवरिंग, जिसकी ये कवरिंग है, दिस ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द कंप्लीट मसल इज कवर्ड विद द कनेक्टिव टिश्यू, दैट कनेक्टिव टिश्यू इज कॉल्ड द इपिमेशियम। इसको क्या कहते हैं? इपिमेशियम। इस वाली कवरिंग को, इस इंटायर मसल की आउटर कवरिंग जो है, ट्रांसवर्स सेक्शन, क्रॉस सेक्शन, उसको क्या कहते हैं? कनेक्टिव टिश्यू ने कवर करके रखा है, तो दैट वी कॉल द इपिमेशियम। आफ्टर दैट इस मसल में क्या है? इसमें बंडल्स ऑफ मसल सेल्स आर प्रेजेंट। ये बंडल्स ऑफ मसल सेल्स आर प्रेजेंट। इन बंडल्स को, ये जो बंडल्स हैं, ये इन बंडल्स में भी मसल सेल प्रेजेंट है ना, तो इन बंडल्स को क्या कहते हैं? फेसिकल्स। There are the bundles present, bundles of the muscle fibers, bundles of the muscle cells. और one more thing, here I want to add one more thing. Muscle cells को muscle fiber भी बोलते हैं, cells इनको myocytes भी बोलते हैं। यहाँ पे इन bundles में बहुत different मतलब I mean to say कि बहुत से myocytes हैं, बहुत से muscle cells हैं यहाँ पे। तो इन bundles को क्या कहते हैं? इन bundles को fascicles कहते हैं। और ये जो fascicles हैं, ये जो इस फेसिकल की अपनी आउटर कवरिंग है। एक फेसिकल को लेंगे, दीज फेसिकल्स हैव कवरिंग, दीज फेसिकल्स आर कवर्ड, दीज फेसिकल्स आर सराउंडेड विद द कनेक्टिव टिश्यू एज वेल, दैट कनेक्टिव टिश्यू इज कॉल्ड द पैरामाइशियम। ये फेसिकल जो है, इस फेसिकल की अपनी एक कवरिंग है। इसको किस कनेक्टिव टिश्यू ने कवर करके रखा है? उस कनेक्टिव टिश्यू को पैरामाइशियम कहते हैं। दिस कवरिंग, जिस कवरिंग ने फेसिकल को कवर करके रखा है, उस फेसिकल में 100 to 1000 मसल सेल्स हैं वहां पे प्रेजेंट। तो इसकी जो कवरिंग है, दैट कवरिंग इज कॉल्ड द पैरामाइशियम, राइट। अब क्या है? अब हम इस बंडल्स ऑफ द मसल सेल में, इन फेसिकल्स में एक इंडिविजुअल सेल को लेते हैं। यहां पे मैं इस चीज को रब करूंगा, यहां पे मैंने एक इंडिविजुअल सेल को लिया है, लाइक इस इंडिविजुअल सेल को मैंने लिया है। इस फेसिकल से में मैंने एक इंडिविजुअल सेल को लिया है। व्हेन इट कम्स टू द इंडिविजुअल मसल सेल, व्हेन इट कम्स टू द इंडिविजुअल मसल फाइबर, तो क्या है यहाँ पे? दिस इंडिविजुअल मसल फाइबर इज ऑल्सो कवर्ड विद द कनेक्टिव टिश्यू, दैट कनेक्टिव टिश्यू इज कॉल्ड इंडोमाइशियम। When we take the individual cell from the bundles of the muscle cells, तो वो इंडिविजुअल मसल सेल जो है, दैट मसल सेल इज ऑल्सो सराउंडेड, दैट इज कवर्ड विद द कनेक्टिव टिश्यू, दैट कनेक्टिव टिश्यू इज कॉल्ड द इंडोमाइशियम, राइट। और उसके बाद ये जो इंडोमाइशियम है, बनी द इंडोमाइशियम, इस ये वाली मसल सेल की बात कर रहा है, ये जो इसकी आउटर कवरिंग जो है ना कनेक्टिव टिश्यू की, इसको इंडोमाइशियम कहते हैं। और बनीथ द इंडोमाइशियम, और वी कैन से दैट द बिलो द इंडोमाइशियम देयर इज द मसल, देयर इज द सेल मेम्ब्रेन, वहां पे सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, दैट सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द सर्कोलीमा। इस सर्कोलीमा को क्या, इससे जो सर्कोलीमा है, जो इंडोमाइशियम है, इंडोमाइशियम कनेक्टिव टिश्यू है, जो कनेक्टिव टिश्यू एक इंडिविजुअल सेल को कवर करता है, उस कनेक्टिव टिश्यू इंडोमाइशियम के बनीथ, इंडोमाइशियम के बिलो सेल का एक अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है। उस सेल मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? सर्कोलीमा। आई मीन टू से सर्कोलीमा इज द सेल मेम्ब्रेन, जो कहां पे, जो बनीथ द और बिलो द इंडोमाइशियम है। अब इस सर्कोलीमा के बनीथ भी, बनीथ द सर्कोलीमा देयर इज द साइटोप्लाज्म, सर्कोलीमा के बनीथ भी सर्कोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म है।
सर्कोलीमा के बनी जिस तरह लाइकवाइज इंडोमाइशियम कनेक्टिव टिश्यू जो जिसने इंडिविजुअल सेल को कवर करके रखा है, सराउंड करके रखा है, बनी दिस कनेक्टिव टिश्यू there is the sarcolemma. What is sarcolemma? It is the cell membrane called the sarcolemma, which is beneath the or below the endomysium. And likewise this beneath the sarcolemma, beneath this membrane, cell membrane, there is the cytoplasm of cell called sarcoplasm. उसको sarcoplasm बोलते हैं, उसको sarcoplasm बोलते हैं. और in this sarcoplasm, इस sarcoplasm में there are the different components, different aspects, different things which are required for the contraction of the muscles. जो मसल contraction के लिए components चाहिए, वो components कहाँ पे होते हैं? इसी sarcoplasm में होते हैं. लाइक माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम्स होते हैं, एटीपी होते हैं वहाँ पे, लाइक कैल्शियम होता है, लाइक एटीपी, कैल्शियम, एटीपी जो होता है कैल्शियम होता है. तो दीज ऑल दीज थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द कंट्रैक्शन ऑफ द मसल्स वो होते हैं. उसके बाद सर्कोमियर पढ़ेंगे हम. सर्कोमियर जो क्या है? सर्कोमियर जो वो लाइट एंड डार्क बैंड्स जो हैं, लाइट एंड डार्क बैंड्स जो पैरेलली अरेंज्ड है वहाँ पे, जिनका अरेंजमेंट पैरेलली वर्टिकली जो अरेंज्ड है वहाँ पे, दीज लाइट एंड द डार्क बैंड्स जो सर्कोप्लाज्म में है, सर्कोप्लाज्म के अंदर लाइट एंड द डार्क बैंड, सर्कोप्लाज्म इट इज द फ्लूइड. ये फ्लूइड एक किस्म का फ्लूइड विच फिल्स द सेल्स, जो फ्लूइड सेल्स को फिल करता है. तो इस सर्कोप्लाज्म पे ही इफेक्ट पड़ता है एक्सरसाइज का, ट्रेनिंग का, एक्सरसाइज का, इसी सर्कोप्लाज्म पे ही इफेक्ट पड़ता है. तो एट द एंड अल्टीमेटली जो मसल्स हैं वो ग्रो होने लगते हैं. मीन्स के उसको क्या कहते हैं? मसल, उसको सॉरी स्किप कर गए इस टर्म को. जब ये जो सर्कोप्लाज्म है ये एक फ्लूइड है, ये फ्लूइड विच फिल्स द सेल्स. जब एक्सरसाइज व्हेन ए पर्सन इज एक्सपोज्ड टू द डिफरेंट एक्सरसाइजेस, डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, तो स्केलेटल मसल जो वो ग्रो होने लगते हैं. दैट वी कॉल्ड, एक होता है हाइपरप्लेशिया, एक होता है हाइपोट्रॉपी. हाँ यस एग्जैक्टली, हाइपोट्रॉपी. तो हाइपोट्रॉपी इस यहीं पे होता है. तो इस चीज को हम पढ़ेंगे, इफेक्ट्स ऑफ द एक्सरसाइज ऑन द मस्कुलर सिस्टम, उसी में पढ़ेंगे. फॉर दैट मैं इस चीज को टच कर रहा हूं कि ये जो सर्कोप्लाज्म है, सर्कोप्लाज्म में ही डिफरेंट थिंग्स होते हैं. ये एक किस्म का फ्लूइड होता है विच फिल्स द सेल्स. तो इट वाज ऑल अबाउट द स्केलेटल मसल. अब इसी स्केलेटल मसल का दूसरा लेक्चर हम पढ़ेंगे, दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द स्केलेटल मसल. उसके बाद देयर आफ्टर वी विल डिस्कस in the next lecture, we will discuss the smooth muscle, and in the same way there will be one more lecture about the types of the muscle. That will be the last lecture about the types of the muscle, that will be the cardiac muscle.